औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. My students of class 11th, our subject is physics. So far we have discussed the gravitation, the definition of the gravitation given by Newton in 1665. In the last lecture I have told you that it was the Newton who first discovered this gravitation. According to Newton, he said that gravitation is the name given to the force of attraction between any two bodies in the universe. Then he postulates his law, which was known as Newton's law of gravitation. Today we are going to discuss that Newton's law. Let me first explain you what Newton says. He states that every body in the universe attracts every body with a force which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them. तो पहले स्टेटमेंट लिखता हूं. It states that every body in this universe attracts everybody with a force which is directly proportional to the product masses and is inversely proportional to the square of the distance between them. तो इसके कहने का मतलब है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इसको देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला या एक फार्मूला सिंपल सी हम इसको चेंज करेंगे उसमें, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि that F means the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of the masses of the two bodies and is inversely proportional to the square of the distance between them. For example, आप मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मैस जो है that is M1 और दूसरी बॉडी जो है मान लीजिए बॉडी A है और ये बॉडी B है. इस बॉडी A का मैस M1 है और बॉडी B का मैस जो है वो M2 है. That means M1 and M2 are the masses of the two bodies. And say, for example, R is the distance between them or between the centers of the two bodies. हमें सेंटर से लेनी है. मान लीजिए आप R जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ दिस टू बॉडीज. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इन दो के दरमियान जो है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज A and B with mass M1 and M2 respectively and R is the distance between them, then F is equal to or F is directly proportional to M1 into M2 divided by R square. और मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, और मैं इक्वेशन में चेंज करूँ, दैट्स F is equal to GM1 into M2 by R square. Here I used the letter G. What does this G means? G is simply the universal gravitational constant. Here G is equal to the, or we call it the universal gravitational constant. That means its value is always constant. It's constant. तो इक्वेशन साइन जैसे ही हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इक्वेशन में चेंज किया तो हमने मेंशन जी किया, तो जी है सिंपली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अगर अब मैं एक्सप्लेन करूंगा जी होता क्या है,
जी की मतलब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द जी क्या है. In simple terms, this universal gravitational constant is equal to the force of attraction between two bodies, each of unit mass, whose centers are placed unit distance apart. तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये सिंपली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है. अगर हमारे पास बॉडीज दो हैं, ए बॉडी एंड बी बॉडी, बोथ बॉडीज का मैच जो है 1 यूनिट है, इसका भी और इसका भी 1 यूनिट है, और जो इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है और जो है वो भी 1 यूनिट है. दैट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is equal to the force of attraction acting between two bodies, each of unit mass, whose centers are placed unit distance apart. तो अगर मैं मैथमेटिकली दिखाऊंगा तो सिंपली हियर एफ इज इक्वल, अगर मैं इस न्यूटन इस लॉ को यूज करूंगा, दैट्स एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r square. We know that here the mass of the bodies is 1 unit and the distance between them is 1 unit. That means F is equal to G into 1 divided by 1 square, which implies F is equal to G. That means it is simply that force of gravity when the mass of the two bodies is 1 unit and the distance between them is 1 meter or 1 unit. तो ये फोर्स वही होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इट इज कैलकुलेटेड दैट इट इज कांस्टेंट इन द दिस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. तो इसका वैल्यू जो है इट इज 6.67 into 10 raised power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और हम लिख सकते हैं इसका G इज इक्वल टू विच इज कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट चेंज, इट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट. इट इज इक्वल टू 6.67 into 10 raised power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये यही कांस्टेंट है. इट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट्स यूनिवर्सली कांस्टेंट. तो इस न्यूटन के लॉ से हम किसी भी दो बॉडीज या प्लैनेट्स की बात कर सकते हैं तो इनकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर कर सकते हैं, इधर मैस भी मेजर कर सकते हैं. तो इस तरीके से हो गया ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इसके सपोर्ट में अगर मैं न्यूटन्स लॉ जो है सच्ची में एग्जिस्ट होता है, क्या ये लॉ एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो सिंपल सी बात है, नेचर में बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनसे ये क्लियरली मालूम होता है कि ये एग्जिस्ट करता है, ये लॉ जो है करेक्ट है. ऐसी कौन कौन सी एविडेंस हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि सच्ची में न्यूटन्स लॉ एग्जिस्ट होता है, और नेचर में जो फिनोमिनाज हैं वो अच्छे से इससे एक्सप्लेन होते हैं. फर्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो रोटेशन की, अर्थ की रोटेशन अराउंड द सन, तो या रिवॉल्वेशन की, इट इज ओनली पॉसिबल when there is a force of attraction between the sun and the earth. That means the revolution जो है earth की around the sun, it's only possible because of this gravitational force. That means this law exists. तो इससे explain होता है ये. दूसरा चीज जो हम lunar eclipse, solar eclipse जो है वो नेचर में होता है, ये भी fully explain कर सकते हैं हम on the basis of this theory or on the basis of this law. और तीसरा पॉइंट जो है जो टाइडस ओशंस में पाई जाती हैं, दैट मीन्स मून और ओशनिक वाटर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो दो मैसेस हैं इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनकी वजह से जो है वो टाइडस होते हैं. दैट मीन्स वहां पे भी एप्लीकेबल है. और अगर हम ऑर्बिट्स की बात करते हैं या टाइम पीरियड्स की बात करते हैं, हम आजकल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, तो वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड, हम ऑर्बिट्स चेक करते हैं. That means it's only possible when the gravitation exists is there. तो तभी हम इन चीज़ों को देख पाते हैं. तो इस तरीके से न्यूटन्स लॉ जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है.
तो आज मॉडर्न वर्ल्ड में यही एक्सेप्ट होता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूटनस लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. In the next lecture, we will discuss the new topic. Till then, stay home, stay safe.